السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر اردو وتھ الطاف نوحر۔ اور ہمارا جو سلیبس چل رہا ہے وہ 10th کلاس اور 8th کلاس کا چل رہا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 5، جس کا نام ہے زبانوں کا گھر ہندوستان۔ اس کے مصنف ہیں سید احتشام حسین صاحب، جو کہ ہمارے ریڈ کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ تو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور جو چیز موسٹ ہے اس کو یا تو نوٹس بنا لیں گے یا پھر اپنے سبق میں ایسے ہی الگ لکھ لیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام ہے سید احتشام حسین۔ حضرت کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت کی پیدائش 1912 کے اندر ہوئی۔ اب سوال پوچھ لے کہاں ہوا ان کا جنم یا ان کی پیدائش کہاں ہوئی، تو یو پی کے اندر ایک ضلع ہے جس کا نام ہے اعظم گڑھ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قصبے کا نام ہے ماہل، اس جگہ حضرت کی پیدائش ہوئی۔ انتقال کو کہاں ہوا حضرت کا؟ انتقال پہلے تو کب ہوا یہ دیکھیں گے۔ 1972 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اور کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال ہوا الہ آباد کے اندر، ان کا انتقال ہوا۔ یہ دو چیز موسٹ ہے۔ اس کے بعد کتابوں کے نام جیسے تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پروفیسر سید احتشام حسین کی پیدائش قصبہ ماہل، ضلع اعظم گڑھ، یو پی میں ہوئی۔ یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد آ گئے۔ یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، دو چیز اس میں یاد کرنے والی ہیں۔ احتشام حسین کا شمار اردو کے صف اول کے نقادوں میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر ان کی اہم کتابیں۔ تو ان سب کتابوں کو جو ہے ہم انڈر لائن کر لیں گے اور الگ ان کے نوٹس وغیرہ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے امریکہ اور یورپ کا ایک سفر نامہ بھی لکھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی۔ بچوں کے لیے انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا اردو کی کہانی۔ اس کتاب میں اردو ادب کی تاریخ مختصر طور سے بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ تو پوچھ لیں کہ ان کی کتاب اردو کی کہانی کس کے لیے لکھی گئی، تو خصوصاً کس کے لیے لکھی گئی؟ ان کی کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ سبق ان کی کتاب اردو کی کہانی سے لیا گیا ہے۔ کون سا سبق جو اپنے نصاب کے اندر شامل ہے؟ زبانوں کا گھر ہندوستان۔ یہ ان کی اردو کی کتاب اردو کی کہانی سے لیا گیا ہے۔ یہ بھی سوال بعض مرتبہ پوچھ لیتے ہیں۔ زبانوں کا گھر ہندوستان، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے جن میں کہیں اونچے پہاڑ، گہری ندیاں راستہ روکتی ہے، کہیں پھیلے ریگستان ہیں جن میں آبادی کم ہے، کہیں زمین سونا اگلتی ہے، کہیں بنجر ہے اور کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہاں کے بسنے والوں کو دیکھیں تو کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی ہیں، لمبے قد والے بھی ہیں اور چھوٹے قد والے بھی ہیں، جنگلیوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے بھی ہیں۔ یہاں نہ جانے کتنے طرح کے لوگ ملتے ہیں اور
कितनी तरह की ज़बानें और बोलियां बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5,000 बरस से भी ज़्यादा हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होगी और अजीब अजीब ज़बानें, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि उसमें अलग अलग होने पर भी सब मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। ये बताना कठिन है कि 5,000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर दराज के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे, जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। इनमें से इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जबान बोलते थे, वो आज भी अलग है। वो जो जबान बोलते थे वो आज भी अलग है। उनमें से कोल और मिंडा कबीले मशहूर हैं। ये आगे सवाल भी आएगा, ठीक है। कौन सी दो कौमें थी बता देंगे, तो कोल और मिंडा कौम थी और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती ना हो। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। उनके 1,000 1,500 बरस के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है, यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तुमने तमिल, तेलुगु जबानों के नाम सुने होंगे, ये उन्हीं लोगों की जबानें हैं। आगे सवाल भी पूछा जाएगा कि द्राविड़ी लोग कौन सी जबानें बोलते थे, तो तमिल, तेलुगु, एक जबान और इसमें आ जाएगी मलयालम। वो आगे सवाल जवाब में बता देंगे। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आम तौर पर तारीख में आर्या कहा जाता है, ये तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3,500 बरस हुए होंगे ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत ही बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़बान बोलते थे उसे आर्याई ज़बान कहते हैं। आगे ये भी सवाल पूछा जाएगा, तो आर्याई ज़बान बोलते थे, ठीक है। सवाल ये, उत्तर भारत से जो कौम आई थी वो कौन सी ज़बान बोलती थी, वो आर्याई। बाकी सवाल में इंशाल्लाह आगे तफसीर के साथ बता दिया जाएगा। संस्कृत उसी की एक शाख है। अच्छा, सवाल ये आएगा कि संस्कृत किस जबान की शाख है, तो संस्कृत आर्याई जबान की एक शाख, ये सवाल आएगा, ठीक है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़बानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती है। ज़बानों की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले
या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या मिली जुली ज़बानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे जात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, कई हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती है, किसी हिस्से में कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए, तो उन्होंने अपनी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे, धर्म कर्म की बातें की। उस वक्त दूसरी प्राकृतों या जबानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें उसी से काम है। इस प्राकृत को शोरशिनी कहते हैं। आगे आएगा शोरशिनी, ठीक है ना, ये भी एक सवाल का जवाब होगा। उसी के पेट से दो भाषाएं पैदा हुई है, जिनको हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू कहते हैं। तो हिंदी और उर्दू किससे पैदा हुई है? शोरशिनी प्राकृत से पैदा हुई है। बहुत मरतबा ये सवाल पूछ लेते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़बानें हैं। इसके मुतालिक भी सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन ज़बानों को भी थोड़ा याद कर लेंगे। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तिफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों की भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाए तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें एक उर्दू ज़बान भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई है और यहीं के लोगों ने उसे तरक्की दी है। उसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। पहले देखेंगे लफ्ज़ और माना। देश, देश का माना मुल्क और देश, ठीक है। कबीला बोलते हैं गिरोह को। प्राकृत अवामी बोली, आम बोलचाल की ज़बान। गौर करने की बातें खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। सवाल जवाब देख लेंगे। 6 सवालात हैं इसके अंदर, वो हम मुहिम के ज़रिए करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मुहिम की गाइड, बिल्कुल आसान से ही है इंशाल्लाह। अगर आप थोड़ा ध्यान और तवज्जो के साथ सुनेंगे तो अभी याद हो जाएंगे। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान की क्या खुसूसियात है? जवाब, हिंदुस्तान जोग्राफियाई एतबार से एक लंबा चौड़ा मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब, नस्ल और कौम के लोग जो अलग अलग ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही की खुसूसियत है कि अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कौमें रहती है, अलग अलग जोग्राफियाई हालत इनकी अलग अलग है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं दरिया है, कहीं समंदर है, कहीं पहाड़ है। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम तो सबक में निशान लगाए थे। 2 कबायली नस्लें, एक का नाम कोल है, दूसरे का नाम मिंडा है। तीसरा सवाल, द्राविड़ कौन सी जबान बोलते थे? ये भी सबक के अंदर निशान लगा दिया था। तो द्राविड़ी 3 जबानें बोलते थे, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ठीक है। 3 जबानें द्राविड़ी लोग बोला करते थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम। चौथा सवाल, संस्कृत किस जबान की शाख है? तो संस्कृत ये निशान लगा दिया था, आर्यई जबान की शाख है। सवाल नंबर 5, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? ये भी हमने सबक के अंदर बताया था, उत्तर भारत में शोरसिनी प्राकृत बोली जाती है। सवाल नंबर 6, हिंद आर्यई ज़बानें कौन सी है? तो आखिर में जो निशान लगाया था, हिंद आर्यई ज़बानें, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़ियाई, हिंद आर्यई ज़बानें। सवाल नंबर 6, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जबान से निकली है? तो उर्दू शिमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई और शोरशिनी से निकली है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए
تو کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔